بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پاکستان اور خصوصاً مانسہرہ کے عوام سے گزارش کروں گا کہ کل استحکام پاکستان کے حوالے سے پشاور میں ایک عظیم شان پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، جو کہ پاکستان کی دفاعی اداروں اور پھر اسی طرح پاکستان کے استحکام کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا 9 مئی 2023 کو، اس کے حوالے سے کل 9 مئی کے دن، جو کہ ایک سیاہ ترین دن تھا پاکستان کی تاریخ کا اور پاکستان کے استحکام کے حوالے سے ایک سیاہ ترین دن جانا جاتا ہے اور جانا جائے گا، تو اس حوالے سے کل ہم نے مل کے پاکستان کے ساتھ پاکستان کے استحکام کے ساتھ اور پاکستان کے اداروں کے دفاع کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے ہم نے اکٹھا ہونا ہے۔ اور میری گزارش ہوگی مانسہرہ کی عوام کے ساتھ کہ کل انشاءاللہ صبح 9 بجے ہم تمام انشاءاللہ مانسہرہ کے قائدین، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ انشاءاللہ وہ پانو انٹرچینج موٹر وے پہ انشاءاللہ وہاں سے روانہ ہوں گے اور انشاءاللہ پشاور قافلے کی صورت میں پشاور روانہ ہوں گے، اور اسی طرح بٹاگرام سے کچھ قافلے جو آئیں گے وہ بھی ہمیں آگے ملیں گے، اسی طرح پھر آگے ایبٹ آباد میں، پھر ہری پور میں، اور میری انشاءاللہ یہ بھرپور پروگرام ہوگا۔ پاکستان کے دفاعی اداروں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ کل ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہیں اور پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے بھرپور جدوجہد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ 9 مئی کا دن ہے، یہ وہ دن بدقسمت دن ہے کہ جس دن پاکستان کے افواج پہ ہمارے شہداء کی جو بھی علامات تھی، تصاویر تھی، ان کی بے حرمتی کی گئی۔ جن شرپسند عناصر نے یہ کام کیا، پاکستانی قوم اور بالخصوص ضلع مانسہرہ کے لوگ اس کی پرزور اور سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور یہ کسی طریقے سے بھی پاکستان میں قابل قبول نہیں ہے۔ فوج پاکستان کے استحکام کی ضامن ہے اور ہم لوگ انشاءاللہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کل 9 مئی کے دن استحکام پاکستان کی جو ریلی یہاں پہ جناب سردار محمد یوسف صاحب کی قیادت میں اور ہمارے جو قائدین ہیں ان کے ساتھ ضلع مانسہرہ کے لوگ بھرپور تعداد میں پشاور جا کے شرکت کریں گے، اور اس بات کے ساتھ افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کریں گے۔ پاک فوج زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ہم لوگ، ہماری پوری قیادت، پاکستان مسلم لیگ نون کی پوری قیادت یہاں پہ موجود ہے۔ ہم لوگ انشاءاللہ صبح 9 مئی کے جو ہمارا واقعہ ہوا تھا اس کے بارے میں ہماری مشاورتی میٹنگ ہوئی ہے، تو انشاءاللہ صبح 9 بجے ہم پانو انٹرچینج سے پشاور کے لیے روانہ ہوں گے۔ تو استحکام پاکستان کے لیے ہم لوگ ایک پیج پہ ہیں انشاءاللہ۔ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کے ہیں، تو انشاءاللہ کل بھرپور طریقے سے ہم لوگ شرکت کریں گے اپنے تمام تحصیل مانسہرہ، تحصیل بالاکوٹ، تحصیل بفا، تحصیل اگی اور تحصیل دربند سے۔ ہماری 5 جو تحصیلیں ہیں، تمام ہماری جتنی بھی ہماری قیادت ہے انشاءاللہ وہ اس میں بھرپور شرکت کرے گی۔ تو ہم لوگ اپیل کرتے ہیں اپنے پاکستانیوں سے، اپنے محب وطن جو ہے ہمارے پاکستانی، ان سے اپیل کرتے ہیں کل بھرپور طریقے سے ہماری اس ریلی میں شرکت کریں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پاکستان کے عوام کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ نے 9 مئی کو جو ایک سیاہ ترین دن ہے، جس دن ہماری فوجی تنصیبات پہ حملہ ہوا، ہماری قومی تنصیبات پہ حملہ ہوا، ہم عوام اس بات پہ انشاءاللہ اکٹھے ہیں کہ ہمارے وہ وطن کے محافظ کہ جو سرحدوں پہ اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اور وہ شہداء جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل پہ قربان کر دیا ہے، ان ماؤں، ان بزرگوں، ان بیٹوں کے خون کا ہم ایک قطرے کا بھی انہیں اس کا حساب نہیں دے سکتے، لیکن ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور اس ملک کے دفاع کے لیے اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم ان عناصر کا بھرپور طور پہ مذمت کرتے ہیں کہ جنہوں نے 9 مئی کو، جس کو ہم یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں، جو انہوں نے ظلم اور بربریت کی اور ہمارے شہداء کی تقدس کو پامال کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 مئی 2023 جو کہ پاکستان کا ایک سیاہ
तरीन दिन था। इस दिन शरपसंदों ने हमारे सिक्योरिटी इदारों पर हमला किया। हमारे जो शहदा थे जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी थी, उनकी तनसीबात पे उन्होंने तोड़ फोड़ किया। इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और इसी सिलसिले में 9 मई को हम कल इंशाअल्लाह पानो इंटरचेंज पे सुबह सब इकट्ठे होंगे। उधर से पेशावर इंशाअल्लाह कायद मोहतरम सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब की क़यादत में रैली जाएगी और हम अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से और पाको हिंद यानी बर सग़ीर के मुसलमानों की एक जदोजहद थी। जब अंग्रेज़ बर सग़ीर में आया और अंग्रेज़ को यहाँ से निकाला गया और पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया, उस वक़्त से लेकर आज तक पाकिस्तान की मुखालिफ ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान को ख़त्म करने की दरपेश हैं। और इसीलिए किसी ने कहा कि चुभता हूँ दिल यज़दां में कांटे की तरह अब भी। और इसी सिलसिले की एक कड़ी को देखते हुए 9 मई 2023 को एक वाक़या हुआ और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के दिल पर हमला किया गया, अफवाज पाकिस्तान की तनसीबात पर और शुहदा की यादगार को जो है वो उखेड़ा गया। और ये एक पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन दिन था और ये एक मज़मूम और एक नाकाम कोशिश उन लोगों की इमा पर, उन ताकतों की इमा पर की गई जो पाकिस्तान के मुखालिफ थे और पाकिस्तान के दुश्मन थे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी नौजवान जो है वो बेदार हैं और इन लोगों की तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। और इंशाअल्लाह कल 9 मई को इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान के जितने भी तमाम इदारे हैं और ख़ासकर अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती के तौर पर इंशाअल्लाह सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब की क़यादत में ज़िला मानसरा से एक बहुत बड़ा काफ़िला नौजवानों पर मुश्तमिल जाएगा। मैं अपने तमाम नौजवान दोस्तों से ये पुरज़ोर अपील करूँगा कि कल 9 मई के वाक़ये के सिलसिले में जो सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब की क़यादत में रैली पेशावर रवाना हो रही है, सुबह 9 बजे इंटरचेंज पे तमाम लोग बराए मेहरबानी उनसे दरख्वास्त है, जितने भी हमारे वर्कर हैं, हमारे भाई हैं, वो सुबह इस चीज़ को यकीनी करें कि सुबह 9 बजे पानो इंटरचेंज पे पहुँचें और सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह हम कल पेशावर जाएंगे और इंशाअल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान रैली में शिरकत करेंगे। ये हमारा अज़म भी है और पाकिस्तान के लिए ज़रूरी भी है, ये हमारे मुल्क की सलामती भी है। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 9 मई कायद हुर्रियत, कायद पाकिस्तान जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब के हुक्म पर एक अज़ीमुश्शान काफ़िला पेशावर रवाना होगा। जैसा कि आप सब के इल्म में है कि 9 मई वो दिन है जिस दिन चंद बदबख्तों ने पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के दिफाई इदारों पर एक नाकाम कोशिश की है। तो इंशाअल्लाह ताला कल हम अपनी फ़ौज के साथ, अपने मुल्क के साथ और अपने इदारों के साथ इजहार यकजहती के लिए कायद हुर्रियत सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब की क़यादत में एक अज़ीमुश्शान काफ़िला रवाना होगा। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ख़ुसूसन मुहिब वतन पाकिस्तानियों से, बुज़ुर्गों, नौजवानों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी अफवाज के साथ, सलामती इदारों के साथ और मुहिब वतन होने का सबूत देते हुए पेशावर में भरपूर शिरकत करें ताकि ये मुल्क दुश्मन अनासर को इंशाअल्लाह ताला हम बता दें कि हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 9 मई जो ब्लैक डे के तौर पर कल मनाया जा रहा है, क्योंकि 9 मई को पाकिस्तान की सालमियत पर पाक फ़ौज के जो एक सालमियत का अदारा है, इस पर जो हमारे मुल्क दुश्मनों ने जो हमला किया, जो 9 मई के दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी की, उसके ख़िलाफ़ कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरा पाकिस्तान निकल रहा है। और हम ज़िला मानसरा से कायद हुर्रियत सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब की क़यादत में एक बहुत बड़े काफ़िले के हमरा मानसरा सुबह 9 बजे से इंशाअल्लाह अज़ीज़ निकलेंगे। मेरी तमाम आवाम से, नौजवानों से, भाइयों, दोस्तों से गुजारिश है कि कल निकल कर ये साबित करें कि 9 मई का जो वाक़या हुआ है ये मुल्क की सलामत के ख़िलाफ़ था। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पाक फ़ौज के साथ थे, क्योंकि पाक फ़ौज मुल्क की बका की अलामत है और पाक फ़ौज पहले भी पाकिस्तान की सलामत की अलामत थी और इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेगी। कल जो 9 मई है उस दिन सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया को खुश किया गया, पाकिस्तान मुखालिफ कुफ्त को खुश किया गया। आज भी जो लोग 9 मई के हवाले से जो खुश हो रहे हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। और इंशाअल्लाह मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ निकल कर भरपूर इस बात का इज़हार और यकजहती करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
ख़ास करके सरदार साहब की क़ियादत में रैली इंशाअल्लाह जाएगी पेशावर, और इंशाअल्लाह ज़िला बड़ग्राम से भी इंशाअल्लाह रैली आएगी, और मानसरा से भी रैली जाएगी इंशाअल्लाह पेशावर। और ख़ास करके मानसरा वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मानसरा के जो लोग हैं ये बबर शहर लोग हैं इंशाअल्लाह, और ये शहरों का शहर है, और इंशाअल्लाह यहाँ से जो रैली और बड़ग्राम से जो रैली आएगी इंशाअल्लाह समझिए ना, और ये तारीख़ी रैली होगी इंशाअल्लाह कल, और पेशावर में ये रैली इंशाअल्लाह जाके इत्माम होगी। तो इंशाअल्लाह समझिए ना, मुझे ये यकीन है कि मानसरा की आवाम इसमें भरपूर शिरकत करेगी, और सरदार यूसुफ साहब की क़ियादत में, और हम भी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अपने बुज़ुर्गों से और नौजवान भाइयों से यह दरख्वास्त होगी कि कल इंशाअल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान का एक प्रोग्राम जो कि सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब ने भी पैगाम दिया है, सरदार शाहजहां साहब का भी पैगाम हुआ है, और तमाम नुमाइंदगान का ये पैगाम है अपने बुज़ुर्गों को और नौजवान भाइयों को कि ये 9 मई जो हमारे शुहदा की पिक्चर को जलाया गया, ये एक बर्बरियत का दिन था, और इंशाअल्लाह हम अपनी पाक फौज के साथ हैं। और कल 9 मई को जो पानो इंटरचेंज से इंशाअल्लाह पेशावर की तरफ ज़िला मानसरा से काफ़िला रवां दवा होगा, जिसकी क़ियादत सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब करेंगे। हमारी अपने तमाम बुज़ुर्गों और नौजवान भाइयों से यह दरख्वास्त है कि कल के इस प्रोग्राम में भरपूर तरीके से शामिल हों।